தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் பி சுவாமிநாதனின் இனிய காலை வணக்கம். ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கும் ஒவ்வொரு விசேஷம் உண்டு. எப்படின்னா, நம்ம இப்போ மூல முதல்வன் பிள்ளையாரை பார்த்தோம் அப்படின்னா, பிள்ளையாருக்கு அந்த பிள்ளையார் சதுர்த்தி ரொம்ப விசேஷம். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல பாகங்கள்லையும் விநாயகர் சதுர்த்தி விசேஷம் ரொம்ப கோலாகலமாக நடக்கும். அதே போல மாலவன் எனப்படும் மகாவிஷ்ணுவுக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி ரொம்பவும் விசேஷம். ஒவ்வொரு வைணவ தலத்திலையும் அந்த வைகுண்ட ஏகாதசி நிகழ்வு ரொம்ப கோலாகலமாக கொண்டாடப்படும். முருகப்பெருமானுக்கு கந்தசஷ்டி, அதே போல சிவபெருமானுக்கு ஈசனுக்கு உகந்த விழா என்ன அப்படின்னா மகா சிவராத்திரி. भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम्. ஒவ்வொரு மாசமும் சிவராத்திரி வரும் அப்படின்னாலும் இந்த மகா சிவராத்திரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப விசேஷமான தினம். மகா சிவராத்திரிக்கு ஏராளமான புராண கதைகள் உண்டு. அந்த புராண கதைகள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எல்லா ஆலயங்கள்லையுமே அந்த மகா சிவராத்திரி தினத்தன்று 4 காலம் அல்லது 6 கால பூஜைகள் செய்து இரவு முழுக்க கண்விழித்திருந்து அந்த ஈசனை அபிஷேகம் செய்து அந்த ஈசனுக்கு அலங்காரம் செய்து பலவிதமான நிகழ்ச்சிகள் மேற்கொண்டு அந்த ஈசனை குளிர்விப்பது நமது வழக்கம். மிச்ச நாள்லாம் ராத்திரியில கோவில்ல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அந்த மகா சிவராத்திரி அப்படின்னா அன்றைய தினம் சிவபெருமான் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காரோ, லிங்க சுரூபத்துல ஈசன் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காரோ அந்த ஆலயங்களுக்கு போய் அந்த பெருமானை வழிபட வேண்டும் அப்படின்னு மக்கள் பயணப்படுவார்கள். அன்றைய தினம் இரவிலேயே ஒரே ஆலயத்திலேயே உட்கார்ந்து 4 காலத்தையும் பார்ப்பாங்க, அல்லது 6 கால பூஜைனா 6 கால பூஜையும் பார்ப்பாங்க. இன்னும் சில பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த நள்ளிரவு வேளையில நம்மால முடிஞ்ச அளவுக்கு சிவலிங்க திருமேனிகளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு பல இடங்களுக்கு பயணிப்பாங்க. பல இடங்களுக்கு பயணம் செய்து பல கோவில்களை தரிசனம் செய்து அன்றைய தினம் புண்ணியத்தை பெருக்கிக் கொள்வார்கள். भस्मोद्धूलित देहाय व्याळयज्ञोपवीतिने रुद्राक्षमालाभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम् सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमदेशाय मङ्गलम्. मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय शान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलम्. गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुरघ्नाय वामदेवाय मङ्गलम्. सद्योजाताय शर्वाय भव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गलम्. सदाशिवस्वरूपाय नमस्तत्पुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलम्. श्रीचामुण्डा प्रेरितेन
रचितं मङ्गलास्पदम् तस्याभीष्टप्रदं शम्भोः यः पठेन् मङ्गलाष्टकम्. சென்னைக்கு பக்கத்துல செங்குன்றம்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த செங்குன்றத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு கிராமம் நல்லூர். அந்த நல்லூர் அப்படிங்கிற கிராமத்துல ஒரு சிவன் கோவில் இருக்கு. அந்த சிவன் பேரே நல்லீஸ்வரர்னு பேரு. அந்த சிவனுக்கு நல்லீஸ்வரர்னு பேர் இருந்தாலும் அகஸ்தீஸ்வரர்னு ஒரு பேர் இருக்கு. இங்க இருக்கக்கூடிய அம்பாள் பேரு ஆனந்தவள்ளி. ஆனந்தவள்ளி உடனுரை இந்த அகஸ்தீஸ்வரர் கோவில்ல இந்த சமீபத்தில் வந்த மகா சிவராத்திரி தினத்தன்று வெகு விசேஷமாக 4 கால பூஜை ரொம்ப சிறப்பா நடந்தது. இந்த அபிஷேக காட்சிகளை எல்லாம் நாம பார்க்கறதுங்கிறது காண கண்கோடி வேண்டும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதே போலத்தான். उषःसन्ध्या समासन्ना जनास्वत्सेवनोत्सुकाः उत्तिष्ठ त्वं जगन्नाथ सुप्रभातं वदामि ते. भगवन् सङ्गमेश त्वम् उत्तिष्ठ वरदो भव. उत्तिष्ठ त्वं जगन्मातः सुकाल्यां वेदनायिके. मातः प्रपन्नजनकामितदानशीले शीतांशुचूडहृदयाम्बुजपीठवासे. वेदाम्बिके विधिभुगैर्विबुधैर्सुपूज्ये श्रीसङ्गमेशदयिते तव सुप्रभातम्. तव सुप्रभातमखिलाण्डनायिके भवतु प्रभूतमहिमोज्ज्वलाकृते. भवसागरोत्तरणकर्णधारिके जय सङ्गमेशदयिते दयाम्बुधे. प्रभातकालः समुपागतोऽसौ प्रभूतकान्तिप्रसराधरित्री. विहङ्गवृन्दानि समुत्सुकानि वदन्ति शम्भो तव सुप्रभातम्. ब्रह्मादिदृक्षुः सनकादियुक्तो भक्त्या बहिस्तिष्ठति विश्वयोनिः. विष्णुस्तथोच्चैस्तव पाञ्चजन्यम् हृद्घोषयन् गायति सुप्रभातम्. इन्द्राग्निवैवस्वतया तु नाथ यातः पतिस्पर्शनवस्वधीशाः. ईशान शम्भो तव दर्शनार्थम् अभ्यागता शङ्कर सुप्रभातम्. सिद्धाश्च विद्याधर यक्षरक्षो भूताप्सरः किन्नर गुह्यकाश्च. गन्धर्वसंज्ञाः पिशाच वृन्दाः गायन्ति शम्भो तव सुप्रभातम्. भक्तास्त्वदीया सकलत्रपुत्राः स्नात्वा भवद्ध्याननिमग्नचित्ताः. बद्ध्वाञ्जलिं मूर्ध्नि विदृक्षवस्ते तिष्ठन्ति शम्भो तव सुप्रभातम्. त्वत्सेवयोत्सुकतया पवनो भवानी कावेरिका जलकणान् परिगृह्य मन्दम्. आदिपुष्पनिवहोद्गतगन्धवाहक
श्रीसङ्गमेश्वर विभो तव सुप्रभातम् पङ्केरुहप्रियतमोऽपि सुवर्णसूची सङ्काशरश्मिनिवहैस्तव पादयुग्मम् नीराजयन्नचिरतोऽयमुदेश्य दीह श्रीसङ्गमेश्वर विभो तव सुप्रभातम् बर्हिर्मुखासवनिताः परिपूतचित्ताः तेहर्मुखे सपदि सङ्गममग्नगात्राः द्वारोपकण्ठभुवि सन्ति विनीतवेषाः श्रीसङ्गमेश्वर विभो तव सुप्रभातम् अर्काब्जभूमिसुत बोधनवागधीश शुक्रार्कजाहि शिखि मुख्य खगासताराः अभ्रे प्रदक्षिणतया सततं चरन्ति श्रीसङ्गमेश्वर विभो तव सुप्रभातम् त्वद्भक्तिपूर्णहृदयो भसितानुलिप्तः त्वत्पार्षदप्रवरभूत गणाग्रगव्यः नन्दीवहैर्मुरजमा हननेच्छयास्ते श्रीसङ्गमेश्वर विभो तव सुप्रभातम् काल्याङ्गना हिमकणैः कृतवञ्चनेयम् वेदाम्बिका प्रियसखी त्वमभित्समाना एतां प्रबोधयितुम् उद्यतवृत्तिरास्ते श्रीसङ्गमेश्वर विभो तव सुप्रभातम् स्वस्तोत्रपाठकमहीरुह वन्दिनोद्य शाखाकरैः कुसुमवर्ष विधिं विधाय कुर्वन्ति पक्षिरुतरूप नुतिप्रपञ्चम् श्रीसङ्गमेश्वर विभो तव सुप्रभातम् एतालतायुक्तयो मृदुमारुतेन धूताङ्गिकाः कळचलत्पदचाररम्याः त्वत्प्रेयसी प्रियसखी समतां वहन्ति श्रीसङ्गमेश्वर विभो तव सुप्रभातम् எத்தனை விதமான திரவியங்களை கொண்டு அபிஷேகம் பண்ண முடியுமோ அத்தனை திரவியமும் அன்றைய தினம் இரவு 4 யாமத்திலும் செய்தார்கள். ஒவ்வொரு யாமத்திலையும் ஒவ்வொரு காலத்திலையும் அங்கேயே உட்கார்ந்து அந்த அலங்காரம் முடித்த அந்த வேளையில இறைவனோட நாமாக்களை சொல்லி அந்த சிவநாமத்தை சொல்லி அந்த சிவனோட போற்றிகளை சொல்லி அந்த இடத்திலேயே அந்த இறைவனோடு ஒன்றி இருந்து காணப்பட்டார்கள். இந்த நல்லீஸ்வரர் என்கிற அகஸ்தீஸ்வரர் ரொம்ப விசேஷமான இறைவன். இந்த இறைவனுக்கு 3வது காலத்துல ஒரு விசேஷமான அபிஷேக காட்சியை நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது. சாதாரணமா எல்லா கோவில்லையும் சிவபெருமானுக்கு நெய்யை வச்சு அபிஷேகம் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த ஆலயத்துல அந்த 3வது காலத்துல நெய்யை வச்சு சிவபெருமானுக்கு ஒரு அபிஷேகத்தை பண்ணி இந்த ஈசனோட திருமேனிக்கு ஒரு அபிஷேகத்தை பண்ணி அதன் பிறகு கம்பளியை கொண்டு அந்த திருமேனியை போர்த்தி விடுகிறார்கள். नमो भूतानां
भूतनाथं नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो दिव्यतेजं नमः कामभस्मं नमः शान्तशीलं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् सदा तीर्थसिद्धं सदा भक्तरक्षं सदा शैव पूज्यं सदा शुद्धभस्मं सदा ध्यानयुक्तं सदा ज्ञानकल्पं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् श्मशानं भयानं महास्थानवासं शरीरं गयानां सदा चर्मवेष्टं पिशाचं निशोचं पशूनां प्रतिष्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् फणीनागकण्ठे भुजङ्गाद्यनेकं कडेरुण्डमालं महावीरशूरं कटिव्याघ्रचर्मं चिताभास्मलेपं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् शिरशुद्धगङ्गा शिवा वामभागं बहुदीर्घकेशं सदा मान्त्रिनेत्रं फणीनागकर्णं सदा फालचन्द्रं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् இதே ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு சங்காபிஷேகம் 108 சங்காபிஷேகம் எப்படின்னா ஒரு இடத்துல 108 சங்க வச்சு அந்த சங்குகளுக்கு உண்டான பூஜையை பண்ணிட்டு அந்த ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களை கொண்டே ஒவ்வொரு சங்கையும் கொண்டு வந்து கருவறை அருகே கொடுக்க சொல்லிட்டு அந்த நீரை கொண்டும் ஒரு அபிஷேகம் அன்றைய தினம் செய்தார்கள். नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकारमाकाशवासं भजेऽहं नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं कराळं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारसारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा रसफालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजे भानुकोटिप्रकाशं त्रयीशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत
कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मधारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं वापि सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा देव तुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि शापान्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति. இந்த நல்லூரில் அருள் பாலித்து வரும் நல்லீஸ்வரரின் அருள் இந்த உலகம் முழுக்க இருக்கிற அனைத்து அன்பர்களுக்கும் போய் சேர வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.